قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في موضع تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے ایک ضروری اعلان. پہلی بات، ہمارے دینی بھائی نوشاد سردار کے لیے خاص طور پر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات، نوشاد سردار کے لیے ہم خاص طور پر دعا کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، میرے مسلح بھائی، اس بات کو ذرا آپ دھیان سے سنیں. کئی بار پہلے کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ صدقہ خیرات دان کریں گے. مسجد میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد میں اگر کچھ دینا ہو تو میرے بڑے بھائی جناب مخلص الرحمان چودھری صاحب جو اس مسجد کے سیکریٹری ہیں، ان کے ہاتھ میں دیجیے اور رسید لیجیے. وہ اگر نہیں ہے، عبد الماسٹر ہے ان کو دیجیے، نظام ماسٹر ہے ان کو دیجیے، نجیم صاحب ہے ان کو دیجیے. یہ لوگ یہاں عام طور پر رہتے ہیں اور زیادہ طور پر جب کلیا چک میں ہوتے ہیں تو بڑے بھائی مخلص الرحمان چودھری پہلے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں. آپ لوگ ان کے ہاتھ میں دیجیے اور رسید لیجیے. ایک سسٹم سے کام ہو، حساب کتاب بہتر طریقے سے رہے، یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، اور کہنے کا موقع مت دیجیے. آپ لوگ میرے بڑے بھائی کے ہاتھ میں دیجیے، رسید لیجیے، یا ان کے علاوہ اور 3-4 نام ہم نے لیا ان لوگوں کو دیجیے اور رسید لیجیے. اور اس پر آپ لوگ عمل کیجیے، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے. محترم حضرات، آج کے خطبے میں آپ سنیں گے صحیح بخاری شریف کی 4 حدیث. بڑا مزہ آئے گا، بہترین حدیث سنیں گے. اور اس کو میں محنت کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف سے میں نے نوٹ کیا ہے. یہ حدیثیں ہمیں یاد ہے، اس کے باوجود ذہن سے نہ نکل جائے اس لیے تھوڑا تھوڑا اشارہ اس میں لکھ لیتا ہوں. آپ کو آج بتاؤں گا میرے بھائیوں، حنفی اور اہل حدیث کسی کا اس میں اختلاف نہیں. کتاب کا نام آپ سننا چاہیں گے؟ الطبیان، امام نبوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. الطبیان، امام نبوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. اس کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، نہ امام شافعی کا اختلاف، نہ امام ابو حنیفہ کا اختلاف، نہ امام احمد کا اختلاف، نہ امام مالک کا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں. وہ کیا ہے؟ فرض کے بعد سب سے زیادہ بہتر عمل، فرائض کے بعد سب سے زیادہ بہتر عمل، اور خاص طور پر اس رمضان میں روزہ کے بعد جو فرض ہے اس کے بعد سب سے بہتر عمل اگر ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے، قرآن کریم کا پڑھنا ہے. میرے مسلم بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت سب سے بہتر عمل ہے روزہ کے بعد آپ کے لیے اس مہینے میں. دلیل قرآن کہہ رہا ہے، شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 30 پارہ قرآن کو اتارا. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 30 پارہ قرآن کو اتارا. اور صرف قرآن نہیں، دنیا میں جتنی کتابیں آئی، بڑی بڑی کتابیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور قرآن، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، 120 کتابیں ہیں. صحفن، قرآن کے اندر کہا ہے صحف، صاد ہا تھا، صحف صحیفہ کہا گیا ہے. 120 کتابیں جو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دیگر انبیاء پر اتاری، تمام کی تمام کتابیں اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتارا. پہلی رات کو اللہ تعالیٰ نے تورات اتارا، 6 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے زبور انجیل اتارا، 13 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے زبور اتارا، 24 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے 30 پارہ قرآن اتارا. یعنی دنیا کی تمام مقدس کتابیں اتاری گئی تو اسی مہینے میں. ہم بات کریں گے قرآن کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اتارا. قرآن کے ذریعے آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت ملے گی. قرآن کے ذریعے سے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. تو میرے مسلم بھائیو سنو، جو ٹینشن میں ہیں، جو پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ کو ہم 2 حدیث صحیح بخاری کی سنائیں گے. حدیث نمبر 5011، حدیث نمبر 5018. ان 2 حدیثوں میں آپ کو بتائیں گے، آپ کے پاس سکون آئے گا، آپ کے پاس آپ کے ٹینشن کو ختم کرنے کا 2 شکل آپ کو بتاؤں گا. اور آج پہلی بار شاید آپ سنیں گے صحیح بخاری شریف کی حدیث. میرے نوجوانوں غور سے سنو، قرآن کا مہینہ، اس مہینے کا ایک نام ہے شہر القرآن. دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے دلیل قرآن کی آیت. تو یہ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ، قرآن کا مہینہ. قرآن آپ کو کیا دے گا؟ سکون دے گا. کس طرح سکون دے گا؟ کس انداز میں دے گا؟ کیا شکل ہوگی؟ کیا نوعیت ہوگی؟ آپ دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ ہاں آپ دیکھ سکیں گے. کس شکل میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. سنیے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمبر 1 حدیث بتا رہا ہوں. صحیح بخاری شریف کی 4 حدیثوں میں سے نمبر 1، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف. اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد نبوی کے قریب کا واقعہ. کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا. سورۃ الکہف کے بارے میں تفصیل ہے، ہم کبھی بتائیں گے. وفی وإلی جانبی حسان مربوط بشطنین، حدیث کا شبد سنیے، اس میں بھی نیکی ملے گی جس طرح قرآن کے شبدوں میں نیکی ہے، حدیث کے شبدوں میں، حدیث کے سننے میں بھی نیکی ہے. اور اس کا نام عبادت ہے، اور اس کا نام عبادت ہے. وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، ایک صحابی قرآن پڑھ رہا تھا، بغل میں اس کا ایک گھوڑا بس بندھا ہوا تھا، بِشَطْنَيْنِ، 2 رسہ سے، بغل میں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا 2 رسہ سے. فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، اتنے میں آسمان سے بادل کا ٹکڑا قریب آ رہا ہے. سنیے، غور کیجیے، حدیث کے معنی بتا رہا ہوں، الفاظ اور شبد یہ ہے. فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ تَدْنُو وَتَدْنُو فَجَعَلَتْ يَقْرَأُ وَتَدْنُو وَتَدْنُو. جیسے جیسے یہ صحابی قرآن پڑھتا تھا، وہ بادل کا ٹکڑا، صحابۃ، بادل کا ٹکڑا قریب آتا تھا. وَجَعَلَتْ فَرَسُهُ، اور ان کا گھوڑا بھٹکنے لگتا. پھر وہ قرآن چھوڑ کے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھتا، گھوڑا چپ چاپ ہو جاتا. پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتا، قاف ہا یا عین صاد، قرآن پڑھنے لگتا. پھر اس کا گھوڑا بدکنے لگتا. فجعل فرسه، یعنی پھر
फिर वो चुप हो जाता, फिर उनका घोड़ा भी चुप हो जाता, फिर वो कुरान पढ़ने लगता। फलम्मा अस्बहात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही माजरा रहा रात भर। जब वो कुरान पढ़ रहा है उसका घोड़ा भिड़क रहा है, फिर कुरान पढ़ना बंद कर रहा है, घोड़ा चुपचाप हो जाता है। आया अल्लाह के नबी के पास, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़कर लहु बिलालिक, नबी के पास आया, वाकया बताया, अल्लाह के नबी में घर में ऐसा था और इस तरह हालत है मेरी, क्या माजरा है। अल्लाह के नबी ने कहा, सुनो मेरे मुसल्लिम भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, तिलका सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरान, ओ मेरे सहाबी, तुमने जो बादल का टुकड़ा देखा जो तुम्हारे घर के करीब आता था तुम्हारी तिलावत की वजह से, और वही देखकर तुम्हारा घोड़ा बिगड़ता था, छटपट करता था, ये था क्या, तिलका सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरान, अल्लाह की तरफ से सुकून था। नहीं बात समझ में आई? मन्ना सलवा उतरता था बनी इसराइल के ऊपर, मन्ना सलवा बेहतरीन खाना, बेहतरीन फूड आसमान से उतरता था। मन्ना सलवा एक शक्ल होती है जमीन पर उसकी, ठीक इसी तरीके से ये सुकून अल्लाह ताला उस सहाबी के घर उतर रहा था। लेकिन इस सवारी की बिगड़ने की वजह से उसने तिलावत बंद कर दी। अल्लाह के नबी के पास आके कहा तिलका सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरान, मेरे सहाबी तुमको नहीं मालूम, अल्लाह की तरफ से वो सुकून था तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए, वो इलाज था, दवा था, मदावा था। नहीं बात समझ में आई? यही हदीस इमाम बुखारी में, बुखारी शरीफ में 5018 नंबर में तफसील से बयान किया है। ये 5011 नंबर हदीस हमने सुनाया, 5018 नंबर हदीस बुखारी शरीफ की, थोड़ा उसमें तफसील है। क्या तफसील है उसको भी आप सुनिए। हदीस नंबर 2, उसैद इब्न हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यक़रअु मिनल लैल सूरतल कहफ़ व फरसहु मरबूतुन इंदहु इज़ जालतिल फरसु। उसैद इब्न हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, यह हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, रात को वो सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन पढ़ रहे हैं। व फरसुहु मरबूतुन इंदहु, उनका घोड़ा उनके बगल में बंधा हुआ है। इज़ जालतिल फरस, घोड़ा बिदकने लगा। फसकत व सकतत, फसकत व सकतत, फिर ये जैसे चुप हो जाता था वो चुप हो जाता था। यही माजरा रहा। वकाना इब्नुहु यहया करीबन मिन्हा, इनका बेटा यहया, उसैद बिन हुदैर का बेटा यहया करीब ही में सो रहा था, और उसके करीब उसकी सवारी ऊंटनी बनी हुई थी। डर लगा कि कहीं मेरे बेटा को नुकसान ना पहुंचा दे ये सवारी, इसलिए पढ़ना बंद कर दिया। अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहा अल्लाह के नबी ये वाकया है, रात को ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी ने पूरा वाकया सुना और कहा इक़रा या उसैद इब्न हुदैर, इक़रा या उसैद इब्न हुदैर, उसैद तुम तिलावत करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कहा अशफक़्तु अला वलद या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे डर लग गया, मेरी सवारी करीब थी, छोटा सा घर था, मेरा बच्चा करीब सो रहा था, डर लगा मेरे लख्ते जिगर को, मेरे नूरे नजर को, मेरा होनहार यहया बच्चा को मेरी सवारी तकलीफ न पहुंचा दे, इसलिए मैंने पढ़ना बंद कर दिया। सुनिए हदीस है, कह रहे रफ़अतु रासी इला समा, मैंने अपना सर ऊपर किया। उसैद इब्न हुदैर साहबी कह रहे मैंने अपना सर ऊपर किया, अपने घर से बाहर आके आसमान की तरफ नजर किया, देखा। अल्लाह के नबी ने पूछा वबा तदरी मादा, अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं उसैद तुम्हें पता है वो क्या था, तुमने जो देखा क्या देखा। कहा तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिका, अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुमने जो देखा वो फरिश्ता था, तुमने जो देखा वो फरिश्ता था। तिलकल मलाइका, एक नहीं दो नहीं, मलाइका बहुवचन, बहुत सारे फरिश्ते एक
पर एक कह बता आसमान तक चले गए थे और तुम्हारी कुरान की तिलावत सुन रहे थे। तिलकल मलाइका तो बनत में सऊदिका, वो फरिश्ते थे तुम्हारी आवाज के करीब आ रहे थे इसलिए कि तुम कुरान पढ़ रहे थे। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, वलो कराता ला अस्बहता यंजुरु नास इलैहा ला ततवारा मिनहुम। उसैद बिन हुदैर उसैद बिन हुदैर, इतनी फजीलत, अगर तुम कुरान पढ़ते रहते अल्लाह की कसम ये फरिश्ते दिन भर तुम्हारी मजलिस में रहते, ला ततवारा मिनहुम, वो तुमसे छुप नहीं सकते, ला ततवारा मिनहुम, वो तुमसे छुप नहीं सकते। गौर करो मेरे मुसल्ली भाई, सूरतुल बकरा पढ़ रहे थे उसैद इब्न हुदैर। आप सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, इत्मीनान को बिगाड़ने वाला शैतान है। और अल्लाह की नबी की हदीस, अल बैतुल लज़ी तुक़रअ फीहि सूरतुल बकरा यफ़िर्रु मिन्हु शैतान, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। जब शैतान नहीं आएगा तो सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, खुशहाली आएगी, शादाबी आएगी, हरियाली आएगी और आप सुकून की जिंदगी जिएंगे। क्या समझ में आया? कुरान पढ़ना है आपको। अजीब व गरीब मसला है। सुनो मेरे मुसल्ली भाइयों, अगर आपके पास अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का लेटर आ जाए, मैसेज आ जाए, आप दौड़ेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो दौड़ेंगे किसी मास्टर के पास, किसी पढ़े लिखे के पास कि इसमें क्या मैसेज है जरा मुझको बताओ। दौड़ेंगे, परेशान होंगे जब तक वो मैसेज आप ना समझ ले। गौर करो मेरे मुसल्ली भाइयों, 30 पारा कुरान जो बड़ा जज, सबसे बड़ा जज का मैसेज आपके पास है। कितना सुना आपने, कितना समझा आपने, क्या समझा आपने? कामयाबी कैसे आएगी, खुशहाली कैसे आएगी, सुकून कैसे आएगा? नबी का बताया हुआ तरीका। कौन है आप में से रमजान का चौथा दिन है रात भर कुरान का एहतमाम करने वाला? और मेरे मुसल्ली भाइयों सुनो, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान से लव लगाओ, अल्लाह की कसम जिंदगी बदल जाएगी। कुरान से मोहब्बत और प्यार करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और बदल गई, कैसे बदली एक अलग विषय है, हम उस पर चर्चा में जाएंगे, हमारी बातें रह जाएगी। 3 हदीस हमने सुनाया है, एक बड़ा दिलचस्प हदीस आपको सुनाऊंगा कुरान से मुताल्लिक। कह रहा था ये कि दुनिया का मैसेज पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप बेकरार होते हैं। रब्बुल आलमीन का मैसेज 30 पारा कुरान आपके घर के पास में है, आपके मोबाइल में लोड है, आपको तौफीक नहीं हुई, 10 मिनट पढ़िए, समझिए, गौर कीजिए। और अजीब है, हमारे मस्जिदों में इमामों का हाल भी, थोड़ा सा अगर लेट कर दिया, एक नहीं कई लोग कहेंगे इमाम देर हो गई, जल्दी पढ़ो। मेरे भाइयों, जल्दी पढ़ना असल नहीं है, 3 आयत पढ़ो, 2 आयत पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ा उसको समझो, ये असल है। बात समझ में आ रही है? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, सूरह क़यामा के अंदर है, फ़क़रअनाहु व इन्ना अलैना जमअहु। अल्लाह ताला जब कुरान उतरने लगा, सूरह क़यामा की पहली रुकू में आपको मिलेगा, कुरान उतरता था, अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी होठ हिलाते थे, जल्दी जल्दी करते थे, अल्लाह के नबी याद करने की कोशिश करते थे। अल्लाह ने कहा, नबी खबरदार, अपना होठ ना हिलाओ, जल्दीबाजी मत करो। अलैना जमअहु व कुराना, मेरा जिम्मा है कुरान तुम्हारे सीने में बैठा देना, मेरा जिम्मा है कुरान तेरे मुंह में जारी करना। अलैना कुरानहु अलैना जमअहु, मना किया अल्लाह के नबी को, जल्दी ना करो। सहाबा इकराम बताते हैं 10 आयत उतर जाती, जब तक हम उसका मफहूम और माना तफसीर नहीं समझ जाते, आगे नहीं बढ़ते, उस पर अमल कर लेते। मेरे मुसल्ली भाइयों, तरावी की नमाज धड़ल्ले से पढ़ने आते हैं, लेकिन समझिए तो सही, इमाम के पीछे आपको चुपचाप रहना है, सूरह फातिहा के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, चुपचाप सुनना है। क्या सुन रहे हैं आप?
क्या समझा आपने? इमाम कह रहा है साला साइलुन बिअज़ाबिल वाक़ि लैसा लिल काफ़िरीन गाफ़िर, तिलावत कर रहा है। आपने क्या समझा? क्या समझा? अगर आप समझ जाएंगे तो अल्लाह की कसम दिल चाहेगा। और फिर कैसा दिल चाहेगा? आइए हदीस सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं। अपने शब्दों में हम बताना नहीं चाहते हैं, अल्लाह का फजल है, मेहरबानी है, रसूल के शब्दों को मेहनत करके आपके सामने बताते हैं। वरना पैतरा करने वालों की तरह अगर पैतरा करूंगा, एक हदीस में खुतबा खत्म कर दूंगा। पैतरा करने वाले करते हैं ना पैतरा। सलाम अलैकुम बंधुगण, सलाम अलैकुम। वो पैतरा मुझे करना नहीं आता है लेकिन डर है रब्बुल आलमीन से, वक्त बर्बाद नहीं करता हूं, हदीसें सुनाता हूं। तो कार्य आता क्या आपका दिल चाहेगा? इस हदीस को सुनिए जवानों, सुनिए, बड़ा दिलचस्प हदीस, बड़ा दिलचस्प हदीस, सही बुखारी शरीफ की 5052 नंबर हदीस। हमने बयान भी किया है इस नंबर में। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेबहादुर सहाबी, फिरौन का देश मिस्र को लड़कर फतह करने वाला बहादुर सहाबी अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अनकहानी अभी इमरातन ज़ात हसबिन व जमाल, मेरे बाप ने मेरा निकाह कर दिया, मेरी शादी कर दी कुरैश के एक बड़े खानदान के एक खूबसूरत लड़की से। सही बुखारी की हदीस बता रहा हूं। अन कहानी अभी इमरातन ज़ात हसबिन व जमाल, मेरे बाप ने मेरा निकाह कर दिया। सुनो जवानों, मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी कुरैश खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ मैडम से। फकाना यताहदु कन्नतहु, और मेरा बाप अपने बेटा बहू की खबर लेता था। सुनिए, जिनके घर में बहू है, हदीस बता रही है, अब्दुल्ला बिन अम्र कह रहे हैं वकाना यताहदु कन्नतहु, मेरा बाप अपनी बहू की खबर रखता था। फयस्अलुहा, उससे पूछता था, सवाल करता था, कैसा है तुम्हारा शौहर, तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? फतकूल, अब्दुल्ला बिन अम्र की बीवी जवाब देती थी निअमर रजुल मिन रजुलिन सालिह, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, सालिह आदमी है। अपने ससुर को जवाब दे रही है निअमर रजुल मिन रजुलिन, आपका बेटा, मेरा ससुर, आपका बेटा अब्दुल्ला बहुत नेक आदमी है, सालेह दीनदार आदमी है। लेकिन सुनिए, लम यतालना फिरासन वलम युफत्तिश लना कनफन मुंज़ अतैनाहु, अब्बा 1 महीना हो गया है, अब्बा 1 महीना हो गया है आपके घर आई हुई, आपकी बेटे की शादी 1 महीना हो गई। लम युफत्तिश लना फिरासन, आपका बेटा अब तक मेरे बिस्तर पर आया नहीं। वलम युफत्तिश लना कनफन, आपके बेटा ने मेरे जिस्म पर हाथ नहीं रखा अब तक। बाप ने सुना, बड़ा भयानक, ये क्या माजरा है, 1 महीना गुजर गया, मेरा बेटा अपनी बीवी के करीब नहीं गया, माजरा क्या है? फिर उसने तहकीक की। हम शॉर्ट कर रहे हैं, बात खत्म न कर पाएंगे इसलिए कह रहे हैं फलम्मा काला बालिका, बड़ा भयानक मसला, 1 महीना तक घर में, और वो भी कुरैश खानदान की। कुरैश कितना बड़ा खानदान है? लफ्ज कुरैश का माना होता है रील मछली, समुद्र के अंदर सबसे बड़ी मछली होती है, उसको अरबी में कुरैश कहते हैं। मतलब क्या है कि सबसे बड़ा खानदान। तो कुरैश मक्का में कहा गया, जिस खानदान से रसूल थे, जिस खानदान से अबू तालिब थे, जिस खानदान से अब्दुल मुत्तलिब थे, इसी खानदान से वो मलऊन कमबख्त अबू जहल भी था, जो इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो कुरैश खानदान की लड़की इतना मुअज़्ज़ज़ मैडम है, मसला बड़ा गंभीर। अब्दुल्ला बिन अम्र का बाप दौड़ता हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी मामला ये है, मामला ये है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी ने कहा इल्कनी बिही, इल्कनी बिही, जाओ तुम अपने बेटे को मेरे पास लेके आओ। गया, अपने बेटे को कहा अब्दुल्ला
चलो अल्लाह के नबी ने हमें बुलाया है। बाप बेटा दोनों आए नबी के दरबार में। कहा बेटा से पूछा, अब्दुल्ला बिन अम्र से पूछा, कहा कैफ तसूम, तुम रोजा किस तरह रख रहे हो? कहा कुल्ला यौम, पूरा साल हर दिन रोजा रखता हूं। जवाब देखिए हदीस का सब। कहा अब्दुल्ला तुम रोजा किस तरह रखते हो? कहा कुल्ला यौम, अल्लाह के नबी रोजाना रोजा रखता हूं, रोजाना रोजा रखता हूं। कहा कैफ तख्तिम, कुरान कैसे खत्म करते हो? कहा कुल्ला लैला, अल्लाह के नबी रोजाना रात को एक बार कुरान खत्म करता हूं। जवाब सुनिए हदीस का सब। कैफ तसूम, अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुल्ला तुम रोजा कैसे रखते हो? कहा कुल्ला यौम, पूरा साल 360 दिन रोजा ही रोजा रहता हूं। कहा कैफ तख्तिम, कहा रात भर में कुरान खत्म करता हूं, मगरिब से लेके तुलुए फजर तक 30 पारा कुरान खत्म। अल्लाह के नबी ने कहा सुम फी कुल्ल शहरिन सलासा, अब्दुल्ला बिन अम्र महीने में 3 दिन रोजा रखो। वक़राइल कुरान फी शहरिन, और महीने में एक बार कुरान खत्म करो। कुल तो इन्नी उतीतु अक्सर मिन ज़ालिक, जवान ताकतवर सहाबी, जवान बहादुर सहाबी, मिस्र की जमीन को फतह करने वाला, कहा उतीतु अक्सर मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी मेरे अंदर ताकत है, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए, क्यों मुझ पर कंट्रोल कर रहे हैं आप? कहा अल्लाह के नबी ने जब इसरार कर रहे हो तो सलासा फिल जुमा, हफ्ता में 3 दिन रोजा रखो, हफ्ता में 3 दिन रोजा रखो। सलासता अय्याम फिल जुमा, जिसका अय्याम 20 कहा जाता है। कहा अल्लाह का और 15 दिन में एक बार कुरान खत्म करो। कहा उती को अक्सर मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैं ताकतवर आदमी हूं, मेरे पास ताकत है, रोजाना रोजा भी रखूंगा, रात को एक बार कुरान भी खत्म करूंगा। और यही सबब है अल्लाह के नबी मगरिब के बाद कुरान शुरू करता हो, फजर तुलू होने से पहले कुरान 30 पारा खत्म। मौका नहीं मिलता है बीवी से मिलने का। दिन को अगर चाहो बीवी के करीब जाओ, तो दिन को बीवी के करीब जाऊं तो फायदा क्या? रोजे से अल्लाह के नबी, बीवी को फायदा क्या? मेरा रोजा टूट जाएगा। यही सबब है अल्लाह के नबी 1 महीना हमने अपने बीवी से मिला नहीं। हदीस का सब लम युफत्तिश लना कनफन मुंद अतैनाहु वलम यता लना फिराशन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस थोड़ी तफसील है, मैं इसको खुलासा कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम 7 दिन में कुरान खत्म करो। फिर उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, उसे हल पर छोड़ दिया। आखिर में है कह रहा था ये सहाबी, या लैतनी कबिलतु रुखसता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं नबी की बात मान लेता, 1 महीने में कुरान खत्म करता, 15 दिन में कुरान खत्म करता, 7 दिन में कुरान खत्म करता। आज जबकि मैं कबूर तू मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं, तकलीफ होती है। और इसी हदीस में है बुखारी शरीफ में, आदमी कमजोर होता है, कुरान पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए दिन में थोड़ा सा हिस्सा वो काना यकरा अपनी बीवियों के सामने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेते ताकि रात में आसानी हो। कहने का मतलब मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस के आखिर में साबित किया है कि कुरान खत्म कर सकता है, ठीक है, ताकत है, कुव्वत है, समझ है, सब कुछ है, खत्म कर सकता है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो अक्सर अला सबअ, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है 7 दिन में कुरान खत्म किया जाए। 3 दिन एक रात में कुरान खत्म कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है, इमाम बुखारी का रुझान है 7 दिन में कुरान खत्म किया जाए, 7 दिन में कुरान खत्म किया जाए। इनका शब्द है वो अक्सरुहुम अला सबई। मेरे नौजवान साथियों, बात खत्म हुई, 4 हदीसें खत्म हुई। मेरा कहने का मतलब आपसे, इस रमजान के महीने में सबसे मुकद्दस फर्ज के बाद अगर कोई अमल है, तिलावत कुरान है, तिलावत कुरान है। क़यामत के दिन रसूल कहेगा, क़यामत के दिन रसूल कहेगा, हाय अफसोस
मेरी उम्मती, जिसने कुरान को छोड़ दिया था। महजूर शब्द आया है कुरान में। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, और जो पढ़ो तो उसको समझो। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, खास तौर पर रमजान के महीने में कुरान सुनिए, पढ़िए और समझिए। हमारे इमाम का इस टीवी चैनल को आप इस्तेमाल में लाइए। ये सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। इस जामे मस्जिद का एक हुस्न तवादु होगा आपके लिए। आप अपनी इमाम से इसका नंबर लीजिए, इन बातों को खुद सुनिए, अपने घर में सुनाइए। एक जवान आदमी बीवी छोड़कर, इस तरह जवान है हमने, बीवी छोड़कर, खूबसूरत बीवी छोड़कर, पड़ोस का आला मैदान छोड़कर, महीना महीना गुजर जाए, कोई तवज्जो नहीं, 30 पारा कुरान में लगा रहे। जवानों, उनकी दुनिया बदल गई थी। यही सबब था, किताबुल्लाह से मोहब्बत थी, प्यार था, शगफ था, लव था। अकूलु कौली हाज़ा।